Hello student, welcome back to today's classes which is exercise 4B of unit 3 algebra chapter 4 expansion. Okay, so now today we will solve the question number 9. So here is question: use property to evaluate 9 cube minus 5 cube minus 4 cube, and we know a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. So here we can find the value of this one, like 9 cube minus 5 cube minus 4 cube is equal to 3 into 9 into minus 5 into minus 4. Okay, so now product of this 9 3s are 27 and 5 4s are 20, and minus minus will be plus. So 9 3s are 27, 9 3s are 27 and 5 4s are 20. It's mean into 20. So here we can multiply 27 to the 54, and this 0 is also put it here, like 540 is our answer of this solution. Okay, so in next question number 2, 38 cube plus minus 26 cube plus minus 12 cube. Here also use this formula: a cube plus b cube plus c cube. Okay, now equal to 3abc. So यहाँ पे हम लोग पुट क्या करेंगे, 38 का होल क्यूब प्लस माइनस 26 का होल क्यूब प्लस माइनस 12 का होल क्यूब, एज लाइक क्वेश्चन यहाँ पे हमने उतार दिया इसे. नाउ अब पुट करते हैं 3abc, यानी कि 3 इंटू 38 into 26 minus 26 into minus 12. Okay, so 38 3s are what, 38 3s are 8 3s are 24. Now 38 into 3 will be what, 3 8s are 24, 4. Okay, now 3 3s are 9 and 9 to 11, 114 into minus minus will be plus, and 26 into 12 is equal to 26 10s are 260 and 26 2s are 52. So 260 plus 52 will be what, 260 plus 52 means 312. Okay, so now 312 into 114, here we can rough these solutions. 312 into 114. So multiply this one. 4 2s are 8, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 2 1s are 2, 1 1s are 1, 3 1s are 3. Okay, now 2 1s are 2, 1 1s are 1, 3 1s are 3. Okay, 8, 4 2 6, 2 2 4 5, 4 and 5, and this one is 3. So here 3 5 5 6 8 will be our answer. Okay, so question number 9 1 and 2 is clear. Now question number 10. So here question number 10, we know a minus 1 by a equal to 3, then a square plus 1 by a square will be what? So here we know that formula is equal to what? We know a square plus 1 by a square is equal to a minus 1 by a whole square plus 2. Okay, this is the formula. So now put the value of this one. So a squared plus 1 by a squared is equal to 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2. Now a squared plus 1 by a squared is equal to 3 3s are 9 plus 2. It's mean a squared plus 1 by a squared is equal to 11. So this is the value of this one. Now in question number 10, a cube minus 1 by a cube. Okay, so here we know a cube minus 1 by a cube formula is what? We know that a cube
minus 1 by a cube is equal to a minus 1 by a का होल क्यूब प्लस 3 into a minus 1 by a. Okay, this is our formula. Now put the value of a cube minus 1 by a cube. So here a minus 1 by a is equal to what? 3. So 3 का होल क्यूब हो जाएगा प्लस 3 into 3 इक्वल टू a cube minus 1 by a cube is equal to 3 3 जा 9 3 जा 27 plus 3 3 is 9 is equal to what? 36. So here we can write the value of a cube minus 1 by a cube is equal to 36. This is the answer. Okay. Now in question number 11, if a is equal to 0 and a minus 1 by a equal to 4, so we know the formula. We know that a squared plus 1 by a squared is equal to a minus 1 by a का whole square, a minus a का whole square plus 2. Now a squared plus 1 by a squared is equal to a minus 1 by a square यानी कि 4 का whole square plus 2 is equal to what? 4 4 जा 16 plus 2, 16 plus 2 18. Okay, so a squared plus 1 by a squared is equal to what? 18 is answer. And in 11 के सेकेंड नंबर क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं. ओके, a का पावर, we know that in this question a का पावर 4 plus 1 by a का पावर 4. So we know that फॉर्मूला इज a का पावर 4 प्लस 1 by a का पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 1 by a स्क्वायर का होल स्क्वायर. ओके, माइनस 2. ये हमारा फॉर्मूला हो सकता है. सो ये किसके ऊपर है? जो हमारा a स्क्वायर, इसका फॉर्मूला इक्वल टू होता है ना माइनस 2. तो यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो a का पावर 4 प्लस 1 by a का पावर 4 हो जाएगा. तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख लिए. अब a का पावर 4 प्लस 1 by a का पावर 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 by a स्क्वायर. हमारा क्या आया है अभी? a स्क्वायर प्लस 1 by a स्क्वायर 18. सो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 18 का स्क्वायर माइनस 2. ठीक है, तो 18 का स्क्वायर क्या होता है? 18 का स्क्वायर 8 8 जा 64. सो 4 एंड 8 1 जा 8 8 2 जा 16. 16 प्लस 6 विल बी व्हाट? 16 22. तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2. बच जाएगा हमारे पास 2 और 1 का स्क्वायर 1 1, तो 324 माइनस 2. ठीक है, ये इजी ट्रिक से हमारा निकल गया 324. तो यहाँ पे आ जाएगा 322. तो वैल्यू ऑफ a का पावर 4 प्लस 1 बाय a का पावर 4 इज इक्वल टू 322 इज आंसर. अब इसी के साथ आते हैं थर्ड नंबर में. थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है? a क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब. ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला हमें पता है. फॉर्मूला क्या होता है? वी नो ए क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब. सो ए क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस 1 बाई ए का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए माइनस 1 बाई ए. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है. आप लोग अपने अपने बुक में देख लेना वहाँ पे. तो ये हमारा फॉर्मूला होता है. अब इसी के ऊपर वैल्यू को पुट कर देते हैं. क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस 1 बाई ए. क्या था हमारा वैल्यू? 4 था, है ना. ए माइनस 1 बाई ए इज इक्वल टू 4 था हमारा. सो यहाँ पे हम लोग 4 का क्यूब
प्लस 3 into 4, ठीक है, 3 into 4 हो जाएगा ना। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 प्लस 12 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 6 and 76. ओके, so here we can write it over here, a cube minus 1 by a cube is equal to 76 is our answer. So यहाँ पे हमारा 9, 10 and 11 क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो रखे हैं। So अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, इफ x is not equal to 0 and x plus 1 by x equal to 2, then so that x square plus 1 by x square equal to x cube plus 1 by x cube equal to x to the power 4 plus 1 by x to the power 4. So यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो x plus 1 by x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 by x square plus 2. This is the formula. And now x square plus 1 by x square is equal to, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x plus 1 by x का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ये जब हम एक्सचेंज करते हैं इक्वल टू के साइड तो हमारा ये वैल्यू आता है। तो जब ये वैल्यू आ रहा है तो इसको हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू हमारे पास 2 गिवन है, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 कर सकते हैं। तो आगे का क्या, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। इसको सपोज करते हैं इक्वेशन 1 है हमारा। अब इसी के तहत आते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब पे, ठीक है। सो इन नेक्स्ट में क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। सो हियर वी नो द फॉर्मूला ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब, ठीक है। होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, इस तरह का कुछ इसका फॉर्मूला होता है। सो इस नंबर को हम लोग इस साइड ले आते हैं, बाकी सारा एक तरफ कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। अब इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 होगा ना। तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू फिर से एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब आते हैं एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स टू द पावर 4 पे। ओके, सो यहाँ पे करेंगे एक्स टू द पावर 4, प्रीवियस क्वेश्चन में अभी हम लोगों ने सॉल्व करा था, इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो जब हमारा ये फॉर्मूला होता है तो इसका वैल्यू हमें पता है 2 है, तो x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2 माइनस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 इक्वल टू 4 माइनस 2 होगा ना। तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा हमारे पास x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 इज इक्वल टू 2। तो हेंस यहाँ पे इसी से हमें क्या मिल रहा है, ये हमारा थर्ड नंबर हो गया, ठीक है। फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4। प्रूव्ड, ये हमारा हो गया प्रूव, है ना।
तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12 अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कहीं पे अगर प्रॉब्लम हो या फिर कहीं मेरे द्वारा मिस्टेक हो गया हो तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, मैं कोशिश करूंगी आगे इसे क्लियर करने का और आप लोगों के प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करने का। और मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13 से नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी हिट कर लेना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। टाटा, बाय बाय।